This is one thing I've discovered recently with the CA community. उन लोग को कंप्यूटर पे बैठ के, एक्सेल पे बैठ के और टैली पे बैठ के काम करना अच्छा लगता है. But I don't think they like talking because I find very challenging to inspire all of you to talk some informal talks. So, what did we learn from this video? Nobody? कंप्यूटर के साथ आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं. Okay, well, let's start our session. So today's topic is time management. It's a very common topic. I think across the globe, 7.5 billion population out of 7.5 billion population, maybe more than 50% would have already spoken on this. Such a common topic. It's going on from years and decades. But yet, mysterious. Where the time flies, we never realize. Time जाता किधर है? कई बार ऐसा होता है कि घड़ी के पीछे जो एक बैटरी डाली जाती है उसकी जगह 4-5 बैटरी तो नहीं डालती, घड़ी फास्ट चल रही. लेकिन फिर हम बाकी घड़ियां देखते हैं अपने लैपटॉप का और मोबाइल का. It's just time is just flying. In fact, इतना we think that we have so much to do and the time is very less, yet we are not able to achieve happiness. Why? Because, as it is said in Srimad Bhagavatam, with every sunrise and sunset, one day is gone. So every day we should take a stock. What did I achieve today? In material life, we check. What about happiness index? Congratulations to all of you. India has once again ranked 139 out of 143 countries in happiness index. And I think that's not true. हमसे आके पूछो, बड़े खुश हैं, आनंद में हैं. पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन उन लोग लेते हैं ये सर्वे करने के लिए. But we should also see, हर दिन का हमारा अपना अपना एक बैलेंस शीट होता है ना, पर्सनल बैलेंस शीट. उसको देखना चाहिए रात को सोने से पहले. 2-4 मिनट मेडिटेट करना चाहिए कि आज क्या अचीव किया, क्या कमी रह गई, क्यों कमी रह गई. And you'll find time management one of the biggest topic which will keep on popping up. There's a situation. Just 1 second. I'll share this. So generally, no, when we say, so we have used this table, incorrect language and correct language. So we say, where has the time gone? Time किधर चला गया? It was such a waste of time. The time just flew past. They took up so much of my time. Where has the day gone? Basically, all these kind of statement हम लोग रोज बोलते हैं, सुनते हैं. But हो क्या रहा है? ये सारे जो statement है, why it is called incorrect language?
I would love to keep the session very interactive, but कोई interact करता नहीं. Otherwise, I would have asked you that why it is called incorrect language. Because ये पूरा लेफ्ट साइड में जितने भी स्टेटमेंट हैं इनमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल. वी आर जस्ट ब्लेमिंग अदर्स. वी आर ब्लेमिंग सिचुएशन. वी आर ब्लेमिंग अदर्स. वी आर ब्लेमिंग the clock. We are blaming the time. We are blaming everyone. A person who wants to attain success, he does not loses his energy in blaming others. He utilizes energy in becoming more responsible, in becoming more responsible. So instead of saying where has the time gone, the correct language is how did I use my time? क्योंकि कोई हमारा time लेके नहीं जाता. It's up to us how we utilize the time. So it was such a waste of time. इसको कैसे बोल सकते हैं? To become, if you want to be more responsible, if you want to take the ownership, how do we phrase this statement? It was such a waste of time. इसको क्या rephrasing कर सकते हैं कुछ? Yes. Can we rephrase it? Anyone wants to speak can unmute and speak. Okay. I wasted so much time. It was not waste of time. I wasted time. And the time just flew past. I didn't keep track of my mind. They took up so much of my time. So and so on, so on. Where has the day gone? How did I utilize my day? What did I do with my day? Have you ever seen such situation or such statements? I need more time. I want to enjoy my life more. I'm always running around. I have never time for myself. My friends and family want more of me, but how do I give it to them? I'm always in crisis because I postpone, but I postpone because I'm always in crisis. It's a catch 22 situation. क्राइसिस है इसीलिए पोस्टपोन कर रहे हैं, तो पोस्टपोन किया तो बाद में क्राइसिस फिर से आने वाला है. तो एक छोड़ेंगे तो दूसरा छूटेगा, लेकिन एक छूट नहीं रहा है क्योंकि दूसरा छूट नहीं रहा है. विशियस सर्कल. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. There's too much stress, there's too much to do, and it is all good. How do I choose? If working harder, smarter, faster won't solve it, what will? People are working hard. People are smart in their work. People are fast with the machines. But still, we see the same situation. So let us see this. Very interesting. Very, very interesting. Some of you might have seen, but let's see. Return on investment of life. So, all of you chartered accountants, this is the language you want to hear always. What is ROI? And your business will ask you, what is ROI? What is ROI? So 65 years of average age if we take of a person. What do we do with the 65 years? It's average. It may not be perfect for everyone, but it gives a good idea. We sleep for 22 years because we sleep for 7 to 8 hours. So almost 1/3 of the time is gone. So in our life, we sleep 22 years. Daily routine, brushing, taking bath, and all that, 2.5 years.
Eating, 5.5 years. Commuting, commuting, 5.5 years. Work, which is most important. Let us see how much time we are investing there. 16 years. We're sleeping more, working less. Miscellaneous, 2.5 years. Personal discretion, 11 years. Thought process, daydreaming, है ना, उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों देखा, it all thoughts. वो मुझे देख के हंसा क्यों, और मुझे बात नहीं करता, all these thoughts. 11 years. This is 65 years. Look at this chart very carefully. Now, why it is like that, and we want to change some things. We want to change the things. So how do we work? हो सकता है आप में से there are, most of you whose life is good, who has time, but still we can do. We can increase our efficiency. We can always have better life. There's no end to. We cannot say my life is best. We can always improve. There's always room for improvement. If we get time, we'll discuss. There are 3 kinds of time. See, if we have time का तो shortage है. So if we have time, we'll discuss what is utilized time, what is unutilized time, and what is misutilized. Or maybe, why not we discuss that? So how do you want me to go ahead with this pravachan style thing, or you want me to, you want to engage yourself in discussion? अगर आपको pravachan style से, I can just go on for hours and hours. I'm used to it. But I heard that people want more interaction, so that's why I'm asking. कि आप लोग को interaction चाहिए, नहीं तो प्रवचन कथा करते हुए मैं निकलता जाऊं. 7 बजे तक करेंगे, फिर हरे कृष्ण बोलेंगे. So what is utilized time, what is unutilized time, and what is misutilized time? Can anyone say what is utilized time, what is unutilized time, and what is misutilized time? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. बोल रहा है जी So सुधीर प्रभु शर्मा जी, बोलिए. टाइम जो हमसे जिस टाइम से कोई पॉजिटिव इनपुट नहीं मिलता है, तो दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम और नेगेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. ओके, सो इसको ना थोड़ा वर्डिंग चेंज नहीं करते, क्योंकि जैसे आप लोग का बैलेंस शीट में वर्डिंग लायबिलिटी को लायबिलिटी लिखते हैं, एसेट्स को एसेट्स ही लिखते हैं, तो वर्डिंग चेंज नहीं कर सकते. सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज यूटिलाइज्ड टाइम. यूटिलाइज्ड टाइम का मतलब क्या होता है? किसी ने मैसेज में लिखा है. एक तो अगर आप लोग अपना नाम लिखेंगे फोन की जगह तो अच्छा रहेगा. अभी मैं बोल नहीं सकता Realme2 has sent a message saying that utilized means productive time. बड़ा impersonal सा लगता है. You can change the name anytime you want. राइट क्लिक करो और आप अपना नाम वहां पे रीनेम कर दो. तो सुधीर ब्रो, व्हाट इज यूटिलाइज्ड टाइम? यूटिलाइज्ड टाइम का मतलब क्या होता है? लेट अस स्टिक टू दैट फर्स्ट. सो प्रभु जी, जिस टाइम से हमको कुछ आउटपुट मिले, सो दैट आउटपुट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट कोई भी आउटपुट मिल रहा है, सो दैट इज अ यूटिलाइजेशन. यस, productive time, as Anmol ji has written, productive time. Yeah, so that's good. Yeah. Yes, good. Anyone else? What is utilized time? Let us focus on one and then we'll go to other two. Utilized time क्या होता है? और कोई बोलना चाहेगा? What is utilized time? Productive time. Basically, what आपने कुछ प्लान किया और उसमें से कुछ एक्टिविटी करके वो कर लिया, that's utilized time.
व्हाट इज अनयूटिलाइज्ड टाइम? फिर बाद में और गहराई में जाएंगे यूटिलाइज्ड टाइम, बट फर्स्ट लेट अस सी ब्रीफ डेफिनेशन of other two. What is unutilized time? Unutilized time मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भी टाइम जिसमें हमने कुछ एक्टिविटी नहीं करी, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया, ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम बेसिकली। हाँ, वेस्ट, यस, वेस्ट इज द राइट टाइम, राइट डेफिनेशन। वेस्ट ऐसे ही जाने दिया, टाइम हाथ से निकल गया, नॉन प्रोडक्टिव टाइम। अभय शर्मा बोल रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव टाइम, और अनमोल जी बोल रहे हैं ट्यून टाइम बाय अदर्स, चैट डिस्कशन। वो तो ओके। अनयूटिलाइज टाइम में बेसिकली आपने कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं, कुछ किया नहीं, बेसिकली डे ड्रीमिंग, गप्पे लड़ाने बैठ गए तो बैठ गए, आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा। अनयूटिलाइज और मिस यूटिलाइज थोड़ा सटल है। व्हाट इज मिस यूटिलाइज टाइम? व्हाट इज मिस यूटिलाइज्ड टाइम? मिस्टर यूटिलाइज टाइम भी आएगा, अभी मिस यूटिलाइज टाइम करते हैं, उसके बाद मिस्टर यूटिलाइज टाइम भी करेंगे। सो व्हाट इज मिस यूटिलाइज टाइम? बेसिकली प्रभु जी, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विथ नेगेटिव आउटपुट। Yeah, misutilized basically is negative activity itself. अब इसको थोड़ा गहराई में देखते हैं। यूटिलाइज टाइम मतलब आपको, मान लीजिए आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटी है इसको करने के लिए सिंपल से टेक ईटिंग योर लंच। आज आपने लंच खाया और अभी डिनर लेना है, ठीक है? तो डिनर के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। सो अगर आपने 30 मिनट्स में टाइम में डिनर लिया, 30 मिनट्स में डिनर लिया, सो दैट्स कॉल्ड यूटिलाइज टाइम। लेकिन अगर आपने वही डिनर 1 घंटे में लिया, so that 30 minutes goes unutilized. So that's unutilized. Now डिनर करते वक्त आप टीवी देख रहे हैं, बीच में फोन पे बात कर रहे हैं, है ना? या सोशल मीडिया पे हैं, so that's actually misutilized time. इसमें आपका हेल्थ भी खराब होता है, पेट भी भरने तक मन भी नहीं करता, फोकस नहीं है ना। आयुर्वेद कहता है जिस चीज फोकस करोगे वो चीज अच्छे से क्वालिटी होती है। जब आप खेल रहे हैं तो खेलने पे ध्यान लगाइए, जब आप खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान लगाइए, जब ऑफिस का काम कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान लगाइए, बट मन लगता नहीं। हम देखेंगे व्हाट आर द रीजंस। सो एक होता है, आज देखिए, आज एक स्टूडेंट जो होता है, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू कितना टाइम है आप लोग के पास, लेकिन सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट कर, कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव वेस्ट ऑफ टाइम, और फिर जो प्रोडक्टिव होना चाहिए वो नहीं होता। अब जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे ना, बड़े लोग इन द सेंस दोस हु हैव अचीव्ड सक्सेस मटेरियल, दे डोंट वेस्ट टाइम, दैट्स द ओनली थिंग। इट्स नॉट कि उनके उनके सितारे लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं, उन लोग जल्दी जल्दी नहीं, दे डोंट वेस्ट टाइम। कॉमन पब्लिक कॉमन इसीलिए होती है क्योंकि वेस्ट करती है टाइम। ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल डू नॉट वेस्ट टाइम। इट्स अ बिग, वेरी बिग क्राइटेरिया टू डिसाइड हाउ मच यू कैन अचीव इन लाइफ। इसी यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अचीवर में, और एक मीडियोकर परफॉर्मर। Okay, so it's good. Now I want you to do some exercise. आप एक पेन और पेपर लीजिएगा और उसमें आप लिखिएगा आपका एक हफ्ता। हम अगले हफ्ते आपको चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आप एक हफ्ते के लिए नोट कीजिए कि डेली 24 घंटे में से आपका कितना यूटिलाइज टाइम है, कितना अनयूटिलाइज टाइम है, कितना मिस यूटिलाइज टाइम।
सो मिस यूटिलाइज अनयूटिलाइज को फिर से एक बार बता देते हैं क्या क्लैरिटी। जैसे मान लीजिए सोना, 7 घंटा सोना, आइडियली 6 से 7 घंटा इज सफिशिएंट फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो आप 7 घंटा सोना है, अब आप 9 घंटा सो गए, तो दैट्स कॉल्ड अनयूटिलाइज, इतना हार्मफुल नहीं है। हालांकि ज्यादा सोने में फिर बैक पेन हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, वो तो अलग है। अनयूटिलाइज में भी टाइम वेस्ट होता है, मिस यूटिलाइज, बट मिस यूटिलाइज इज बेसिकली हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। सो आप अपना टाइम लिखिए, आज रात को सोने से पहले अपना डायरी में लिखिए कितना यूटिलाइज किया, कितना अनयूटिलाइज किया, कितना मिस यूटिलाइज किया। ऐसा 1 हफ्ते का चार्ट बनाएंगे ना, आप रियलाइज कर लेंगे कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सेशंस की जरूरत नहीं लगेगी, यू विल अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। Dhruv wants to ask a question. Yes, Prabhuji, आप unmute कीजिए and ask. You can just unmute and ask, no problem. When I began to study, I began to thinking about future and I can't concentrate again because, yeah. So it's a mind control. So time management के बाद हमारा जो next session follow होता है, वो होता है mind control. आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा mind control, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा माइंड वेस्ट करवाता है, और कृष्णा ने इसके बारे में बताया है। So this entire session. So maybe Abhishek Pro, we can what we can do next time, next session we can keep art of mind control. So क्योंकि अगर टाइम बचाना है तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, जीवन में कुछ भी करना है तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिसयूटिलाइज अनयूटिलाइज। ठीक है, अगर आपको मिसयूटिलाइज और अनयूटिलाइज में भी डिफरेंट नहीं पता पड़ रहा है, एटलीस्ट यूटिलाइज और अनयूटिलाइज तो कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। तो कुछ तो आइडिया आपको मिल जाएगा, है ना। और आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल आप थोड़ा टच करेंगे, नेक्स्ट वीक हम ज्यादा टच करेंगे उसको। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी की ओर लेके जा रहा हूँ। आई वांट टू कीप दिस सेशन एज प्रोडक्ट एज इंफॉर्मेटिव, नॉट इंफॉर्मेटिव, कम्युनिकेटिव, इंटरैक्टिव। सो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, है ना। अगर इंजीनियरिंग नहीं किया होगा, लेकिन ना मैट्रिक्स पता है। आई डोंट नो वेदर यू यूज बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स अकाउंट्स वाले यूज करते हैं, मैनेजमेंट वाले ज्यादा यूज करते हैं। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, हमको सबको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब ये आपको बनाना है, इसमें एक हो गया अर्जेंट और एक हो गया इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली यहां जो एक्टिविटी आएगी, ये आदमी कूद क्यों रहा है इतना मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ जो एक्टिविटी आएगी अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर आप लोग अपना पेन और पेपर ले लें तो अभी बना सकते हैं ऐसा एक चार्ट, और यहाँ पे वो एक्टिविटी आएंगी विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, एंड दिस इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। हम एग्जाम्पल देखेंगे। We'll see some examples. But before that, I want you to think. अब ये शीट आपके सामने है, take 1 minute and write out some things in all the quadrants कि ऐसा कौन सी चीजें होती हैं जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं, और इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हैं। लीजिए अपना अपना नोटबुक और इसको वर्कआउट कीजिए। लेट्स टेक 1 minute।
बट प्लीज कुछ कीजिए, कुछ तो डिस्कशन होना चाहिए इस पे। आपके लिए कुछ कीर्तन लगा दिया। हो गया? Have you written something? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। बोलिए। तो प्रभु जी, जैसे नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट में, जैसे हम सोशल मीडिया पे इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो नॉट एक मिनट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ये क्वाड्रेंट। तो चलिए क्वाड्रेंट 4 से चालू करते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बोलिए। सोशल मीडिया, ओके, व्हाट एल्स? सब लोग अगर बोलेंगे हम ये क्वाड्रेंट भर देंगे, सोशल मीडिया, ओके। इसके लिए तो बिजनेस हो सकता है सोशल मीडिया, बट सबके लिए बिजनेस नहीं है। और कोई बोलना चाहेगा? नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट में और क्या आएगा? ओके, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें क्या आएगा? अर्जेंट, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु जी, इसमें तो कुछ मिला नहीं। एक्चुअली अर्जेंट है अगर, तो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन में फिरा दो। हाँ, कई बार हमको लगता है अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट भी होगा। नहीं, ऐसा होता है कि अर्जेंट होता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये वाला भी आएगा। टॉक टू गर्लफ्रेंड, और ये बोल रहे हैं टॉक टू गर्लफ्रेंड। ये कौन सा है? अर्जेंट है पर नॉट इम्पोर्टेंट है। फोन आ रहा है, आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स अ डीप रियलाइजेशन। हाँ ध्रुव प्रभु, इट्स अ वेरी डीप रियलाइजेशन आपका है, गर्लफ्रेंड से बात करना। हाँ? जिनका शादी हो गया पता नहीं, वो फिर बोलेंगे वाइफ से बात करना। एनीवेज, अर्जेंट, बहुत सारी चीजें अर्जेंट होती है, ठीक है। व्हाट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट? तत्काल टिकट करना,
रूटीन अरे वर्क। आप लोग चैट बॉक्स में बोलते हो, इससे अच्छा थोड़ा बोल के देखो ना, अच्छा लगेगा मेरे को। प्रभु जी, मुझे बार बार रूटीन चैट, वर्क अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। रूटीन वर्क अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में भी हर कोई रूटीन वर्क नहीं होता। कहाँ इंटरव्यू नो, अभय जी ने बोला इंटरव्यू, गौतम ब्रो बोल रहे हैं रिटर्न फाइलिंग। हाँ भाई अभी तो आ रहा है, 15 अप्रैल आ रहा है। स्टडी एवरी डे, ग्रिपिंग ऑन थिंग्स। सो अर्जेंट इंपॉर्टेंट बहुत सारा मिलता है, यू नो। अगर आपका ये, चलो ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट देख, सेकेंड क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। इसमें से हमारा बेस्ट सिचुएशन क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हमारी किस क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, किस क्वाड्रेंट में ये इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है? भक्ति इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। अर्जेंट भी है एक हिसाब से, वो अर्जेंट भी है। तो अब बताइए कि विच क्वाड्रेंट शुड हैव मैक्सिमम टास्क लिस्ट, हमारा सबसे बड़ा टास्क लिस्ट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, यस। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट चीजों को आप टाइम पे नहीं करोगे तो इंपॉर्टेंट तो है, वो अर्जेंट हो जाती है, नॉन अर्जेंट से अर्जेंट पे चला जाता है। और नॉन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, तो लेट अस सी कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं। मुझे बार बार चैट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अनमोल जी बोल रहे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले में ज्यादा होना चाहिए। नहीं, अगर आपकी बहुत सारी एक्टिविटी अर्जेंट में है ना, तो दैट मीन्स अगर ये क्वाड्रेंट में ज्यादा रहोगे तो इसके जैसा हालत हो जाएगा, इसके जैसा हेयर स्टाइल हो जाएगा। हाँ, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा हमेशा। अगर अर्जेंसी में चलोगे ना तो हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, और क्या बोलते हैं वो, ब्रेन हेमरेज, ये सब हमेशा अर्जेंट वालों में रहने वालों की चीज है। नॉट वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप इस क्वाड्रेंट में है 1 और 3 में, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है अर्जेंट वाले में। कभी कभी अर्जेंट हो सकता है, इफ यू प्लान योर डे, तो आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को नॉन अर्जेंट बनाया जा सकता है। अगर आपको आपकी मम्मी ने बोल दिया कि आप गैस सिलेंडर बुक कर देना, 3 दिन में गैस खत्म होने वाला, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। बट अगर 3 दिन आप नहीं भूल गए उस चीज को और गैस खत्म हो गया, सवेरे 6 बजे ब्रेकफास्ट बन रहा है 7 बजे, और ना आपके घर में गैस नहीं है, अब भागते रहो, तो इम्पोर्टेंट है अब अर्जेंट भी हो गया। एंजाइटी कितनी ज्यादा हो जाती, अगर उसी एक्टिविटी को प्लान कर लिए होते और 3 दिन पहले आपने बुक कर लिया होता, तो 2 दिन में आपका तो गैस आ जाता है घर में, आजकल तो उसी दिन आ जाता है। तो इंटेलिजेंट मैन विल पुट मोस्ट ऑफ द टास्क हियर। हाँ, कुछ इसमें तीनों में होगा, कुछ कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। लेट अस सी सम एग्जांपल। लेट अस सी क्वाड्रेंट 1, क्राइसिस, डेडलाइंस। अभी आपको पता है कि 31 मार्च लास्ट है, मुझे अपना बैलेंस शीट भी वो सब रिटर्न फाइल करना, 15 दिन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देता ही है ना, 15 अप्रैल। तो अगर उसको मैं पहले से प्लान करूंगा, डू आई नीड टू सिट, रात रात भर जागना पड़ेगा? नहीं। मुझे पता है कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम सीए वालों के लिए होता है मई अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट। मान लीजिए मई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है कोई, नवंबर अटेम्प्ट कर रहा है, मुझे पता है मेरा नवंबर में अटेम्प्ट है। So should I not plan कि सितंबर तक पूरा मेरा कोर्स हो जाना चाहिए, and October should be for you know what you call revision? चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको एक कस्टमर बोलता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट ला के देना, तो बोलता है ठीक है मैं 2 दिन में मंगा दूंगा, लेकिन ये 2 दिन में भूल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट, आलस कर देते, बाद में लाएंगे। अब 2 दिन बाद कस्टमर आ गया, अब भाग रहे हो, अरे कस्टमर चला जाएगा तो हमारा बिजनेस नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहले क्यों नहीं किया आपने? प्रेसिंग प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन, अभी गाड़ी पंक्चर हो गई, ओके, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम। पंक्चर हो गया ठीक है, कहीं कुछ लग गया, पंक्चर हो गया, गाड़ी खराब पड़ गई, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, बट पेट्रोल डालना इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं था अगर आप पहले से प्लान करते।
वो बात अलग है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप रोज जाके सवेरे से शाम तक मजदूरी करते हैं, फिर शाम को पेट्रोल डालते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट उसमें भी एक मजदूर के पास भी कुछ सेविंग तो होती है। तो ये वाली चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका हार्ट अटैक, हार्ट पे प्रॉब्लम होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम होता है, हमेशा चिड़चिड़ाए रहोगे, हमेशा गुस्सेल में रहोगे, गुस्सा रहोगे, बैकफायरिंग करते रहोगे सबके। प्लान करो, विच इज क्वाड्रेंट 2, प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, पर्सनल केयर एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन को भी प्लान करो। if you have a good planning technique or management in your personal life, you'll be very happy, cool and calm, chill out. अगर नहीं है तो उसको सीखिए। जितना आप ज्यादा क्वाड्रेंट 1 में रहेंगे, यू विल बी इन ट्रबल, गोली खाना पड़ेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आप क्वाड्रेंट 2 में रहेंगे, आप बहुत ज्यादा कर पाएंगे एज कंपेयर टू क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 3 तो इंटरप्शन, टेलीफोन कॉल, अभी कुछ टेलीफोन, अभी घर के दरवाजे पे कोई आ गया, ड्रॉप इन अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं क्या है, खोलना तो पड़ेगा ना। और वो क्या आया, कोई आया है कि सर ये अमेजन का पार्सल है, ये एड्रेस कहाँ पे। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो किसी और का एड्रेस पूछ रहा है, आपको क्या करना। बट अर्जेंट है, क्यों, क्योंकि घंटी बजा रहे हैं, किसी का फोन आ गया, आपको तो उठाना पड़ेगा, अननोन नंबर भी, तो क्या उठाना तो पड़ेगा ना। तो ये वाली चीजें होती है, ये भी कम होनी चाहिए, बट इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये सब ना अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट चीजों को यूं निपटा देना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम हमको देना चाहिए अपने दिन का क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 1 हो जाएगा, अगर क्वाड्रेंट 2 में टाइम नहीं देंगे प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और इसमें, तो क्वाड्रेंट 1 अपने आप बड़ा हो जाएगा, जो डेंजरस सिचुएशन है आपके हेल्थ के लिए भी, और प्रोजेक्ट भी उतना क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी क्वांटिटी सब खराब होगा और आपका हेल्थ भी खराब होगा। क्वाड्रेंट 3 को हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो होके रहेगा। आप फोन पे बात कर रहे हैं, रास्ते पे खड़े होके कोई पीछे से आता है, भाई साहब ये एड्रेस बताना, तो आपको बताना पड़ता है, बट ये चीजें 2 मिनट में खत्म होनी चाहिए। पीसी मीन्स पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल केयर है यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट 3 बहुत जल्दी निपटा देना चाहिए। कोई आपसे एड्रेस पूछ रहा है, आप खत्म कर दो, ऐसा नहीं कि उसको घर तक छोड़ दिया, भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है, अरे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं नहीं आपको कुछ काम होगा, अरे हमारे को क्या काम है, वेले बैठे हैं जीवन में, करना क्या है। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के। हाँ, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, हमको मिलते हैं कई बार, इवन बॉम्बे में, बॉम्बे पीपल आर वेरी हेल्पफुल। कई बार मैं किसी से पूछता हूँ कि ट्रेन, मुझे इस ट्रेन में अंधेरी से चर्चगेट जाना है, आइए आइए हम लोग भी उधर जा रहे हैं। फिर ट्रेन में पूछेगा कि मेरे को ग्रांट रोड से उतर के लेमिंगटन रोड जाना है, ये शॉप पे जाना है, कोई मिल जाता है, महाराज जी आइए हम उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। वो उधर जा रहा है, छोड़ देगा, अलग बात। सो क्वाड्रेंट 3 में वी कैन नॉट अवॉइड, बट बहुत कम समय में निपटा देना चाहिए, इसका एंग्जाइटी नहीं होता। क्वाड्रेंट 4 मोस्ट डेंजरस, ट्रिवियल मेटल, सब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, टाइम वेस्ट। यहाँ होगा, एक्टिविटी तो चारों में होगी आपकी, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम अगर आप इस पे स्पेंड कर रहे हैं, देखिए यही फर्क होता है। इफ यू सी पीपल हु आर टॉप बिजनेसमैन, कैसे पहुंचे, स्पेशली दोज हु हैव गॉन फॉर ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल। इफ यू सी politicians, I'm not supporting any party, but I've heard about the schedule of our prime minister. He spends more time here, and that's why his these 3 times go less. उनके में भी होता है, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये सबके में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आपका ज्यादा टाइम अगर यहाँ पे है, यू सी मिस्टर मोदी, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू अचीव सो मेनी थिंग्स। प्लानिंग करते हैं, और गवर्नमेंट चलाना है, पूरा देश चलाना है, तो ये तो क्वाड्रेंट 1 तो अनअवॉइडेबल हो जाता है।
तो ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए आपका। इफ यू डोंट प्लान, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, वन हु प्लान्स, वन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल। अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो तो गए आप, फेल हो जाएंगे। देयर इज नो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी एक्टिविटी में कोई इतना पढ़ाई लिखाई करके फिर क्या फायदा? यू नॉट एबल टू प्लान अवर टाइम, यू टू बी वेरी सिस्टमैटिक। अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो युद्ध के पहले वाली सिचुएशन क्या थी? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो पूरा उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। वहां पे तो फिर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ही हो जाता ना, युद्ध चल रहा है। बट अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं होता। ये नीचे वाले 2 क्वाड्रेंट तो जितना आप करोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन क्वाड्रेंट 1 को बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने वाला लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट एंड क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। अब आप देखिए आपको लाइफ में क्या चाहिए। So every one of you should have this chart for your personal life. अब जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्या होता है? लूज टेम्पर, गुस्सा, हमेशा टाइम कम पड़ता है, कार्य कुछ नहीं कर पाते, अकम्प्लिश वेरी लिटिल ऑफ व्हाट दे वांट टू डू। जितना करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, हमेशा कम होता है और हमेशा गड़बड़ होता है। नो प्लानिंग, थिंग्स गो हैपन, एफिशिएंसी कम होती है, ओवरलोड लेते हैं, फॉरगेटिंग फिजिकल हेल्थ, उनका मेंटल पीस भी चला जाता है, हेल्थ भी खराब हो जाता है। बाद में क्या होता है? बाद में उनको उन दोनों चीज पे ध्यान देने के लिए बाकी काम को छोड़ना पड़ता है। फाइंड नो टाइम फॉर रिलेशनशिप्स, प्रेयर्स, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, टाइम ही नहीं। दिस हैपेंस विद वर्कोहॉलिक्स, ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी कुछ समय ऐसा सिचुएशन हो ही जाता है, बिकॉज वर्कोहॉलिक। मैं अपना मॉर्निंग में उठ के अपना चैंटिंग कर लेता हूँ, रीडिंग कर लेता हूँ, क्लास सुन लेता हूँ, मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अभी मेरा एक्शन का टाइम जब आता है तो आई ऑल्सो गेट इनटू वर्कोहॉलिक मोड, बट आई एम फाइन टू जस्ट अ मोड। वो हमारा नेचर होता है कुछ लोगों का, कफ वात पित्त सब इस पे चलता है। ये तो आपको एक जनरलाइज बता रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो कफ वात पित्त ये समझना पड़ता है हमारी प्रकृति क्या है। तो आई हैव दिस वात, वात बहुत सारा कार्य करा देता है, वर्कोहॉलिक बना देता है। बट वी हैव टू सी कि रिलेशनशिप, बैठ के किसी के साथ थोड़ा टाइम बिताना बहुत जरूरी है। प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मेरे केस में तो प्रेयर तो हो ही जाता है, क्योंकि हम रह ही रहे हैं, हमारा लाइफ ही स्पिरिचुअल है। एंड रिफ्लेक्शन, हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इंट्रोस्पेक्टिव कि क्या कर रहा हूं मैं लाइफ में। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है संसार में, आपके पास जब कुछ चीजें होती हैं करने के लिए, तो अभी देखिए ये जग है आपके पास, इसमें आपको रेत डालनी है, कंकड़, सैंड पार्टिकल्स। देन यू पुट स्मॉल रॉक्स एंड देन यू ट्राई टू फिट इन बिग रॉक्स, बट यू सी बिग रॉक्स आर आउटसाइड, पूरा नहीं जा पाया। सो व्हेन यू डू अनइम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अगर पहले करोगे तो ये हालत होती है। क्योंकि बिग रॉक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, स्मॉल रॉक्स आर सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड सैंड पार्टिकल्स थर्ड इंपॉर्टेंट। अभी इसी को रिवर्स कर दो, हाँ, पहले बिग रॉक्स डाल दिए, स्मॉल पार्टिकल्स अंदर घुस जाता है, सैंड पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है आप देखेंगे हमारी लाइफ में, इसका कहने का मतलब है, और उसके बाद पानी भी डाल दिए, इनका कहने का मतलब है इस एक्टिविटी का। ओके, अभी हम और आगे नहीं जाएंगे। ये एक्टिविटी का मतलब है कि कई बार आप देखते हैं छोटी छोटी अनइम्पोर्टेंट चीजें हम बहुत टाइम लगाते हैं, वो चलते फिरते कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी को मैसेज करना, हाँ तो आप अपने बेडरूम से किचन तक जाते जाते भी अगर ऐसा है तो मैसेज करके छोड़ दिया, उसके लिए सेपरेट टाइम देना। हम जस्ट गिव वन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी, अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, छोटी एक्टिविटी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो लेकिन इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, छोटा सा है। तो उसको मेन हमारा लाइफ में क्या होना चाहिए, वी हैव टू आइडेंटिफाई बिग रॉक्स। छोटी छोटी चीजें होंगी नहीं होंगी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में अगर गैस नहीं है तो कुकिंग नहीं होगी, चावल नहीं है तो खाना नहीं बनेगा,
चावल, आटा, सब्जी, ये जरूरी। अचार नहीं है, कर सकते हैं, बिना अचार खा सकते हैं। पापड़ नहीं, बिना पापड़ खा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कुछ। वी कैन गो हेड विदाउट अचार। सो यू हैव टू फाइंड आउट आपकी लाइफ में चपाती, सब्जी, दाल और राइस ये क्या है। ये आइटम्स, दीज आर बिग रॉक्स। अब पापड़ है, सैलड है, अचार है, नहीं है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। बट आजकल लोग पापड़, अचार, इन्हीं पे ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, यानी अनइम्पॉर्टेंट चीज। डोंट टेक माई एग्जाम्पल इन रॉन्ग वे, और ये मत कहिएगा नहीं नहीं प्रभु जी सैलड तो बहुत अच्छा है, हेल्थ बनाता है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड सीरियल्स, जो आपको एनर्जी देता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बिग रॉक्स इन योर लाइफ। अभी मैंने आपको 3 एक्सरसाइज दी है। एक, यूटिलाइज अनयूटिलाइज मिसयूटिलाइज टाइम। दूसरा वो 4 क्वाड्रेंट वाला। तीसरा, आइडेंटिफाई द बिग रॉक्स। और अगले हफ्ते हमारा सेशन होगा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता, तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। इफ यू वांट, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं पूरा अगला एक सेशन डेडिकेट कर सकता हूँ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ये 3 चीजों को डिस्कस करते हुए, अगर आप लोग चाहते हैं। बिकॉज आप डिस्कस नहीं करते, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा, है ना। बोथ द पार्टीज शुड बी विलिंग, देन ओनली थिंग्स विल हैपन। How to discuss, how to avoid people when they're discussing their story. So there are ways and means. अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो आप उसको हेल्प करना चाहते हो, और तो उसको सुनना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज किसी को आप हेल्प करना चाहते हो, लेकिन कोई अननेसेसरी बार बार अपने दुखड़े रोता है, होते हैं ना कुछ लोग ऑफिस में दुखड़े रोते हैं, कॉलेज में टाइम वेस्ट करते हैं आपका। सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वे, आप बता सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो मैंने 3 एक्टिविटी दी है, तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे हम पूरा एक, ओहो अभी याद आया, नेक्स्ट संडे तो गौर पूर्णिमा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, ये दोनों का मिलन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। इनका अगले हफ्ते जैसे जन्माष्टमी होता है भगवान कृष्ण का, रामनवमी होता है भगवान राम का, वैसे ही गौर पूर्णिमा होता है भगवान गौरंग महाप्रभु का। तो अगले हफ्ते तो 6 बजे मैं भगवान का अभिषेक कर रहा रहूंगा। ये वाला सेशन या तो हम उसके अगले हफ्ते रखें, या तो फिर अगर आप बोलो तो मैं एक हफ्ते के लिए शिफ्ट करके, वी कैन ट्राई आउट फाइंड सम टाइम ऑन मंडे। होली का दिन है, बट पता नहीं आप लोग किस मूड में सैटरडे को रहेंगे। रख सकते हैं। सैटरडे में थोड़ा एंगेज हूँ, क्योंकि कल से लेकर सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे मैंने अपना कल एक्टिविटी प्लान किया। नहीं, मंडे टू सैटरडे मैंने अपना एक्टिविटी प्लान किया 4:30 to 6:30, फिर 7:30 to 9:30। तो ये अगला 6 दिन पैक। हाँ, कल करते तो अच्छा रहता, क्योंकि इमीडिएटली फ्रेश हुआ सेशन तो हो जाता। बट आई वांट यू टू डू, एक हफ्ते का एक्सरसाइज करिए। देखिए, आप अगर उसको बैठ के कार्य नहीं करोगे ना, तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऊपर ऊपर सुपरफिशियल होगा। आई वांट यू टू गो डीप। ओके सर। तो व्हाट यू शुड डू, मे बी अगर नेक्स्ट संडे हम टाइम चेंज कर सके, यू नो, नेक्स्ट संडे को अगर टाइम चेंज करें तो कर सकते हैं। सैटरडे वॉन्ट बी पॉसिबल, क्योंकि अगले यानी कल मंडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक 6 दिन के लिए मैं सब दोपहर में 4 बजे से रात को 10 बजे तक मैंने अपना शेड्यूल पैक कर दिया। क्योंकि मुझे मैंने बोला ना, वर्कोहॉलिक मेरा प्रॉब्लम है, मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ शेड्यूल कर देता हूं। ये मान लो आप बोलते कि आज कुछ नहीं होता, आज ये सेशन नहीं होता, तो मैं कुछ और प्लान करके बैठा होता। सो दैट्स माय प्रॉब्लम, आई नीड एक्शन, बट मैं प्लान करता हूँ चीजों को। तो फिर एक है कि संडे को अगर टाइम हम चेंज करें, है ना। और दूसरा है, मंडे होली है, होली के दिन शाम को कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि आप रिलेटिव्स के साथ रहेंगे, होली तो कोई मनाएगा नहीं। कोरोना जिंदाबाद। तो एक साल आज पूरा हो गया, 21 मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ था, यानी जनता कर्फ्यू हुई थी, 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। Can we see live session of the Abhishek that you are going to do? Yes, yes, live session का लिंक आपको भेज देंगे।
अभिषेक प्रो आपको भेज देंगे कि हमारा वो जुहू इस्कॉन जुहू पे ही होता है, वो आपको भेज देंगे अभिषेक प्रो सबको। इनफैक्ट कल से मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ 4:30 to 6:30, जो कि गौर कथा है, गौर पूर्णिमा के ऊपर। वो पोस्टर भी आपको अभिषेक भेज देगा, तो किसी को अटेंड करना है, टाइम है तो कर सकते हैं। वो यूट्यूब पे है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उस पर अपने आप आपको वो लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कल से 4:30 बजे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है नेक्स्ट वीक इसे टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए, और ध्रुव जी डेफिनेटली हम माइंड मैनेज को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइंड मैनेजमेंट ही होगा 28 के बाद जो भी दिन पड़ेगा, क्योंकि 9 अप्रैल से फिर मैं राम कथा करने जा रहा हूँ, 7 पर्सनैलिटीज ऑफ रामायण। हम एक नया सेशन बना रहे हैं, 7 पर्सनैलिटीज ऑफ राम, सीता, भरत, विभीषण, कैकेयी, रावण, हनुमान। ये 7 लोगों से हम क्या सीखते हैं, एक एक 1.5 घंटे का एक एक पर्सनालिटी पे सेशन होगा, और हमारे अपने जीवन में हम उसको क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये 9 अप्रैल से चालू होगा, रात को 8 बजे चालू होगा, 8 से 9 तक चलेगा। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल उसको आएगा तो इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। और अभी मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट संडे अगर चाहें तो हम नेक्स्ट संडे मिल सकते हैं, लेकिन टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, समवेयर इन द मॉर्निंग या नून मे बी मॉर्निंग, सो दैट कैन बी डन। उसके बाद या तो मंडे अगर होली के दिन आप छुट्टी मनाना चाहते हैं, नहीं तो संडे को हम टाइम चेंज कर सकते हैं। चक्रवर्ती दास यही मेरा चैनल का नाम है, हिंदी वाले का, इंग्लिश वाले का चक्रवर्ती दास इंग्लिश करके। सो आप बताइए नेक्स्ट संडे, देन वील मीट एट 11ish somewhere, 10 मॉर्निंग, 10 o'clock, 11 o'clock, क्या सूट करता है आप लोग को? आप लोग बताइए तो मैं अपनी एक्टिविटीज वैसे प्लान करूंगा। 12 o'clock, 1 o'clock, anything before 4, Sunday 10, okay, so 10 a.m. is that okay सबके साथ? Sunday morning 10 a.m. 10 बजे संडे को। यस प्रभु जी। ओके, सो हमारा इसी पे डिस्कशंस होगा, तो प्लीज डिस्कशन मोड में आइए, अपने आप को एक्टिव कीजिए और डिस्कशन में आइए। एंड टॉपिक ध्रुव जी टॉपिक पूछ रहे हैं, ध्रुव जी टॉपिक पूछ रहे हैं। तो हमने कहा ना अभी टाइम वाला जो आज हमने एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज इसी पे डिस्कस करेंगे, टाइम एक्टिविटी वाले पे डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट संडे पे आपका माइंड मैनेजमेंट वाला होगा। और अगर आपको माइंड मैनेजमेंट पे अर्जेंट है बहुत ध्रुव, इफ यू हैव अर्जेंट, तो मेरा जो चैनल यूट्यूब चैनल दिया है ना, इस पे आप देखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ सेशंस लिए हुए हैं। और दूसरा माइंड को कैसे डील करना है, अभिषेक प्रभु वो जो भगवत गीता वाला मेरा सीरीज है संपूर्ण गीता, उसमें 6th चैप्टर के 4 सेशन है माइंड पे, वो आप भेज सकते हैं, तो फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ध्रुव प्रभु को भेज सकते हैं, और इफ एनीवन वांट्स दे कैन हियर दैट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे, और इसी चीज को टाइम मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे 10 AM। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।